Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study primary education and higher education. So let's start the topic with primary education. See, primary education is the first stage of compulsory education or formal education. Therefore, primary education is much required and most important in education, because if the first stage is so strong and much strong, then it would have a positive impact on secondary education and higher education. And if the first stage is weak, if the fundamental education is weak, then definitely it would have a negative impact on secondary and higher education. Therefore, primary education, which is the first stage of compulsory education, should be provided to every child or every student of this country. Second thing, the primary education is provided for a child who is having the age between 6 year to 14 year, right? And remember, the primary education is provided for 6 to 14 year. Therefore, primary education is fundamental right in India, because according to Article 21A, state shall will provide free and compulsory elementary education for the students who is having the age between 6 to 14 year, right? Therefore, this is the fundamental right, which means that the primary education is a fundamental right in India. The primary education includes nursery and pre-nursery schooling, LKG and UKG, then lower primary, which is class 1st to 5th, and upper primary class 6 to 8 हो जाएगा. Clear? जो the primary education is the foundation for education on which the overall education development depends. Right? So the primary education is a foundation on which the overall development of the child depends. Right? Now we will see following controls. Right? Following controls the primary education system in India. Or we can say that here 5 marker question asked. Who is responsible? Right? Who is responsible for providing primary education in India? Right? Or question can be asked, by whom the primary education is controlled or directed in India, right? So we will see the primary education which is provided by, controlled by and directed by the following bodies. The first is NCERT, right? NCERT means National Council of Educational Research and Training, and NCERT is the apex body, right? So NCERT is the apex body for school education in state, and NCERT provides educational support, technical assistance, supervision facility and formulation of national curriculum. Right? Curriculum, sorry. So it provides help, it provides assistant in formation of national curriculum. So NCERT is the apex body for primary education in a state, which provides facility of technical assistance, supervision and formulation of national curriculum to the school. Second body is a state government boards, right? For an example, there is a Madhya Pradesh board, right? तो जिसको माध्यमिक शिक्षा मंडल कहा जाता है, राइट? तो या तो राज्य में क्या होगा, NCERT होगा, या फिर क्या होगा, अपने अपने राज्यों के जो स्टेट बोर्ड हैं, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स हो जाएंगे. एंड थर्ड इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE. Fourth body is Council for Indian Education Certificate Examination, CISCE. So Council for the Indian School Certificate Examination, this body is also responsible for providing primary education in India. Also there are Islamic madrasas schools, right?
सो जो इस्लामिक मदरसा स्कूल्स हैं दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ NCERT और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स. इस्लामिक मदरसा स्कूल्स, these schools or these madrasas are controlled by either state government or these are autonomous body or belonging to Darul Uloom Deoband, right? इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में, प्रदेश में और अदर जो हैं एजुकेशनल बॉडीज परफॉर्म कर रही हैं. फॉर एन एग्जांपल वुड स्टॉक स्कूल हो जाएगा, और विलेज स्कूल हो जाएंगे, पथ भवन हो जाएगा, एंड आनंद मार्ग गुरुकुल, राइट. सो दीज बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड दीज बॉडीज आर प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, राइट. नाउ वी विल सी प्राइमरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, राइट. Also here a 5 marker question can be asked, right? Write down the what are the government doing for providing the primary school in Madhya Pradesh, and question can be asked what is the situation of primary education in Madhya Pradesh. So these type of question can be asked in the examination. So we will see the primary education in Madhya Pradesh. At first, Madhya Pradesh government is providing education through Samagra Shiksha Abhiyan, right? And Samagra Shiksha Abhiyan is being implemented in all districts of Madhya Pradesh so as government could provide primary education in all districts of Madhya Pradesh. And Samagra Shiksha Abhiyan, or we can say that Samagra Shiksha program is a important program. इस प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि मध्य प्रदेश में एनरोलमेंट इंक्रीज हो, स्कूल ड्रॉप आउट्स कम हो, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हो, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव हो, साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए. साथ ही साथ यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 द स्कूल्स आर बीइंग बिल्ट और developed in Madhya Pradesh, right? So according to Right to Education Act 2019, Madhya Pradesh में if there are minimum 14 students between the age group of 6 to 11 years, then government will provide education facility within the ambit of 1 kilometer, right? So if there are minimum 14 students between the age group of 6 to 14 years, then government will provide education facility within the ambit of 1 kilometer. And if there are minimum 12 children within the age group of 11 to 14, then government will provide education facility within the radius of 3 kilometer, right, nearby their living places. Clear? Now we will see the enrollment in Madhya Pradesh. So this is the latest data, right? And this data I have taken from the economic survey of 2021. So this is authentic data. Latest data has been taken from the economic survey of 2021. So we will see the enrollment situation in Madhya Pradesh. So the enrollment in primary school in Madhya Pradesh, here is a level, here is a year 2018-19 and year 19-20. So the enrollment in primary classes, first to fifth is 75.85 lakh in 2018-19, which has been increased to 76.15 lakh in 19-20. And in upper primary classes, which is 6 to 8 classes, the enrollment is 42.38 lakh, which has been increased to 42.96 lakh in 2019-20, right? Now we will see school dropout rate. See, these segments are more important because 3 marker question or 5 marker question can be asked, right? For an example, 3 marker question can be asked. Write down the enrollment in Madhya Pradesh, या write down the statistics of enrollment in Madhya Pradesh, or can be asked dropout.
3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉप आउट इन मध्य प्रदेश, देन यू कैन कोट दिस डाटा. सो स्कूल ड्रॉप आउट रेट इन मध्य प्रदेश. So, according to Economic Survey of 2021, the school dropout rate at primary level, which means primary level first 1 to 5th standard age 2.86, राइट. तो प्राइमरी लेवल पर जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो है 2.86 इन 2018-19, जो कि 1.05 है इन 1920. सो जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो रहा है. तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट एट प्राइमरी लेवल इन 2018-19 वाज 2.86 एंड इन 1920 is 1.05. Also the dropout rate at the secondary level is 4.35% in 2018-19 and 4.22% in 2019-20. Clear? Also, Madhya Pradesh government is providing free book and 2 pair of uniforms of 600 rupees for first to 8th standard, ताकि स्कूल ड्रॉप आउट कम हो, राइट. इनरोलमेंट अधिक से अधिक हो और एजुकेशन में क्या हो, एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके. सो मध्य प्रदेश government is providing free books and 2 pair of uniforms in Madhya Pradesh, right? Also, Madhya Pradesh government has taken many initiatives for providing primary and secondary schools. So this is also most important slide, right? Here direct question can be asked in the examination. What steps has the government of Madhya Pradesh taken for providing primary and secondary schools in Madhya Pradesh? So प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वी विल स्टडी वन बाय वन. द फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल एंड हॉस्टल, राइट. गर्ल्स को बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो सके, साथ ही साथ गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट हो सके. फॉर दैट कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल्स एंड हॉस्टल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश. Second, Madhya Pradesh government is providing free cycles. So cycles are being distributed in Madhya Pradesh. And जो cycle distribution है वो कब होता है? First is if a particular student is studying in government school. Second, he has passed 5th standard. And third is if the school is 2 kilometer away from his home. तो यदि if a student is studying in government school और गवर्नमेंट स्कूल उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है and if he has passed 12th class then cycle would be distributed to that particular student. और इसमें भी जो गर्ल्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. थर्ड इज स्पेशल एफर्ट्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. सो मध्य प्रदेश हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए क्या कर रही है, राइट. 16 हॉस्टल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. आल्सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री ई बुक्स इन ब्रेल, ताकि जो स्टूडेंट्स देख नहीं सकते हैं वो आसानी से ब्रेल बुक्स के माध्यम से पढ़ सकें. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्कूल चले हम अभियान, राइट, to increase the enrollment and to decrease the dropout and to increase the education quality. So School Chale Hum Abhiyan has been launched by Madhya Pradesh government. Also quality improvement scheme has been launched in Madhya Pradesh, and through this scheme the NCERT books would be used as an authentic book in Madhya Pradesh. इसके पहले मध्य प्रदेश बोर्ड की जो बुक्स होती थी उनके द्वारा ही पढ़ाया जाता था, परंतु अब एनसीईआरटी जो कि बहुत ही अच्छी बुक्स होती हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा. आल्सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड राइट टू एजुकेशन 2019. आल्सो क्लीन स्कूल कैंपस, right, clean school campus campaign has been launched by Madhya Pradesh government.
राइट। और जो क्लीन स्कूल कैंपस कैंपेन है उसके माध्यम से टॉयलेट्स जो है कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, स्कूल कैंपस को साफ सुथरा रखा जाएगा ताकि स्टूडेंट्स कुड गेट अ गुड atmosphere so that they could increase their learning capabilities. Also, one campus one school scheme is being implemented by Madhya Pradesh government, राइट। और इससे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूल किया जाएगा और बहुत ही अच्छे से जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। सो टू गेट द मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, वन कैंपस वन स्कूल हैज बीन लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। Also, Madhya Pradesh government has developed Education Portal 2.0 and this portal would help for providing e-governance and monitoring facilities. Next is प्रणाम पाठशाला एंड विद्यालय उपहार योजना। तो प्रणाम पाठशाला एंड विद्यालय उपहार योजना इज अ गुड पॉलिसी और इस पॉलिसी के माध्यम से whoever is willing to donate furniture, books and etc. material for the welfare of students then he can donate। और इस प्रोग्राम्स के माध्यम से सोसाइटी के जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं वो प्रणाम पाठशाला विद्यालय उपहार योजना के माध्यम से दे कैन डोनेट टू गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। और गवर्नमेंट स्कूल को जो भी डोनेशन जाएगा उससे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो क्वालिटी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा, राइट। सो दीज वर द initiatives or steps which were taken by the government of Madhya Pradesh, right? Now we will study the issues and challenges related to primary education and ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसके challenges कौन से हैं, issues कौन से हैं। So issues और challenges related to primary education, the first is non-availability and poor condition of toilets, right? तो कुछ स्कूल्स में तो टॉयलेट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं और जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कंडीशंस पुअर होती हैं, साथ ही साथ वो क्लीन नहीं होते हैं जिसकी वजह से भी जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है, राइट। तो फर्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी एंड पुअर कंडीशन ऑफ टॉयलेट्स। सेकेंड इज लैक ऑफ वाटर सप्लाई। थर्ड इज हाई ड्रॉप आउट, राइट, क्योंकि स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें उतना अच्छा एजुकेशन जो है प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो लो इनकम पीपल होते हैं वो स्टूडेंट्स या लो इनकम जो स्टूडेंट्स ग्रुप होता है वो दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, देयरफॉर हाई ड्रॉप आउट हो जाएगा। डिक्रीज इन क्वालिटी इन एजुकेशन एंड क्लास लेवल लर्निंग इज लेस, राइट। दिस मीन्स दैट अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो द स्टूडेंट विच इज इन 5th स्टैंडर्ड ही इज नॉट एबल टू रीड और राइट और सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 3rd स्टैंडर्ड, राइट। तो मध्य प्रदेश में नो डाउट एजुकेशन हो रहा है परंतु जो क्लास लेवल है या क्लास का स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड स्टूडेंट आर नॉट एबल टू लर्न, राइट। इसके साथ ही फॉर प्राइमरी एजुकेशन, सो प्राइमरी एजुकेशन के साथ में जो इश्यूज हैं वो रूरल एरियाज में भी बहुत ज़्यादा हैं। सो द इश्यूज इन रूरल एरियाज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आर फर्स्ट शॉर्टेज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। सो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर स्कूल की शॉर्टेजेस है, साथ ही साथ वहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका अफेक्टिव यूज़ नहीं हो पाता है। साथ ही साथ इन रूरल एरियाज द स्कूल बिल्डिंग इज बहुत ही छोटी होती है और उस स्कूल बिल्डिंग में एक ही क्लासरूम में मल्टीपल क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है दैट इज नॉट अप टू डेट और नॉट कंड्यूसिव टू लर्न, राइट। जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है, राइट, अगर फर्श की बात करें या दीवारों की बात करें तो वो बहुत ही खराब और जर्जर स्थिति में होती हैं। साथ ही साथ पुअर क्वालिटी हैंस जो एजुकेशन का पेनिट्रेशन है वो रूरल एरियाज में कम होता है। इसके अतिरिक्त
the issues and challenges of primary education in urban areas. अर्बन एरियाज में भी प्राइमरी एजुकेशन की कई इश्यूज हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, पुअर क्वालिटी हो जाएगा. पुअर क्वालिटी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड. सेकेंड, लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स एंड रिसोर्सेज. कई बार तो स्कूल में केवल और केवल एक या दो ही टीचर्स होते हैं, साथ ही साथ बुक्स है, चौक है, राइट, और जो अदर रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं. लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट. देयरफॉर टीचर्स आर नॉट अप टू डेट एंड the teachers do not perform or do not give their 100%. And lack of infrastructure, these are the issues in urban areas. Also, the primary education has been affected by coronavirus very badly. How? See, we can say that the private school, right, within the period of 2-3 years, private school provided online learning. Therefore, we can say that students who are studying in private school, somehow they are getting knowledge through online medium, right? So they are getting or they are attending online classes. But as far as the students who are studying in government school is concerned, the situation is very critical, because the students who are studying in government school are not getting online education, because there is a connectivity issue, right? There is a connectivity issue and issue of resources, right? Neither government schools have resources to teach online, nor the students have access to a mobile phone or laptop to get the online education. So both government schools and students do not have connectivity or resources. Second thing is that digital infrastructure is not available, right? गवर्नमेंट एक तरीके से अगर हम देखें तो प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना इम्प्रूव ही नहीं हुआ है, साथ ही साथ पेरेंट का जो है सपोर्ट भी उतना नहीं हुआ है. इसीलिए वी कैन से दैट कोरोना पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द प्राइमरी एजुकेशन वेरी बैडली, एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका एजुकेशन तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, राइट. नाउ वी विल स्टडी द सेकेंडरी एजुकेशन. सी, secondary education is a second level or second stage education which includes the classes from 9th to 12th, right? So जो 9th से 12th तक की क्लासेस होती हैं, right, ये 9th से 12th तक की जो क्लासेस होती हैं उनको ही सेकेंडरी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है. सो secondary education is a second level or second stage education in which the education is provided for class 9th and 12th standard, and this education is for the age group between 14 to 18-year-old students. And this जो secondary education है, this is also important, and this education emphasizes on skill development, right, ताकि स्टूडेंट का स्किल भी बेहतर हो सके, राइट. नाउ वी विल सी secondary education in Madhya Pradesh. So to provide secondary education in Madhya Pradesh, there are 17,548 schools are running or being conducted. So 17,548 schools are being conducted for providing secondary education, and out of 17,548 schools, 9,278 are government owned schools, and this data has been taken from Economic Survey 2021. जो 927 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सेकेंडरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, और जो 9,278 स्कूल्स हैं, आउट ऑफ देम गवर्नमेंट हाई स्कूल्स आर 4,936. So 4,936 are government high schools providing education for 10th
9th and 10th education, and 4,342 are government higher secondary schools providing education for 11th and 12th standard. Also, the enrollment in high school is 24.08 lakh, right? तो enrollment in high school is 24.08 lakh and in higher secondary is 14.61 lakh in Madhya Pradesh, right? So high school में enrollment है approximately 24 lakh and in higher secondary 14 lakh, right? 14.61 lakh in higher secondary school. Clear? Now we will study government steps, government initiatives or government schemes for the promotion or development of secondary school in Madhya Pradesh, right? So to provide the secondary education in Madhya Pradesh, government has taken many steps. First is School of Excellence scheme. So School of Excellence is a good scheme. Under this scheme, government will establish स्कूल एक्सीलेंस स्कूल, और जो एक्सीलेंस स्कूल होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर डेवलप किया जाएगा. एंड एक्सीलेंस स्कूल वुड हैव all facilities, good teachers, right, resources, water facility, toilet facility, every facility, right? So to provide secondary education, government is establishing school of excellence, और जो excellence स्कूल होंगे उनमें उनको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलप किया जाएगा, जहां पर सभी रिसोर्सेज एंड सभी प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे. आल्सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री टेक्स्ट बुक, राइट, फ्री टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स. आल्सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग साइकिल्स फॉर द स्टूडेंट्स. आल्सो स्कॉलरशिप इंसेंटिव स्कीम, ताकि स्टूडेंट्स जो जैसे जैसे स्टैंडर्ड को पास करते जाएं उनको इंसेंटिव के रूप में स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि वो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर सकें. साथ ही साथ सुपर 100 स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश एंड इनेक्टेड. ये सुपर 100 स्कीम क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल कोचिंग for IITs, CA, JE in भोपाल एंड इंदौर. तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, अब आप ध्यान से सुने, जो 10th और 12th के जो रिजल्ट होंगे उन रिजल्ट में से हर एक जिले के टॉपर को इसमें सेलेक्ट किया जाता है, राइट. जैसे ये यहाँ पर सुपर 100 का मतलब क्या हुआ कि उस समय पर मध्य प्रदेश में 50 जिले थे, तो 50 जिले से 2, राइट, एक बॉयज टॉपर और एक गर्ल्स टॉपर, राइट. तो हर एक जिले के टॉपर को जो सुपर 100 स्कीम है इसके तहत भोपाल और इंदौर में प्रोफेशनल कोचिंग्स जो है प्रोवाइड कराई जाएगी. साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. तो जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम जो है मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है. साथ ही साथ मेरिटोरियस स्टूडेंट इंसेंटिव स्कीम एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ मॉडल स्कूल्स. तो मॉडल स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और मॉडल स्कूल्स में भी गवर्नमेंट सभी प्रकार की फैसिलिटी को अवेल कराती है. नाउ वी विल स्टडी चैलेंजेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सो सेकेंडरी एजुकेशन के चैलेंजेस में फर्स्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन एनरोलमेंट रेट. जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे एनरोलमेंट रेट कम हो जाता है. उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है स्टूडेंट फ्रॉम पुअर फैमिली वो दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, राइट. सो डिक्रीज इन एनरोलमेंट रेट, सेकेंड डिक्रीज इन गर्ल एनरोलमेंट रेट एंड हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट, और फोर्थ हो जाएगा लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. Now we will study higher education. See, higher education is related to a special subject above primary school and secondary school. See, after passing 12th, student has to decide
which subject he has to study, and he can get enhanced and special knowledge regarding that subject, and he can get a degree in that particular subject. So higher education is related to the special subject, or we can say that subject group after primary and secondary education. Right? In India, the higher education is provided by colleges, universities, international institutions, and technology and management institutions. And the type of higher education we can include: higher education includes graduate, postgraduate, then vocational educations and vocational training. These are included in higher education. Right? When we got independence, at that time higher education was not developed in India. Right? Before the independence of India, there were only 3 universities in India, but after independence the universities were established in India and increased to 250 universities. So at present 250 universities are India which are providing higher education. Right? Now we will see challenges of higher education. Right? So we will see issues and challenges of higher education. First thing is that after independence, universities, colleges have been established in India, but the quality of higher education has not been increased. So quality of higher education is very low in India. So this is the first issue and this is the biggest challenges. Second thing is that not only there is a low quality of education in higher education, the fact is that there is a low quality of education in primary education and middle education system. Therefore when the school education, और स्कूल एजुकेशन में हम किसको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को सम्मिलित कर सकते हैं. सो प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल हैज फेल्ड टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, और जब प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर बेसिक एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, सो डेफिनेटली जो हायर एजुकेशन है उसमें भी उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. सो देयर इज अ लो level of education in primary education, secondary education, and as a result of it there is a low quality education in higher education also. Right? तीसरा इश्यू क्या है? शॉर्टेजेस ऑफ टीचर हो जाएगा. सो जो जितने भी हायर एजुकेशन के लिए प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, राइट, उनकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमी है. साथ ही साथ लैक ऑफ लाइब्रेरीज, right, lack of libraries, laboratories and resources for higher education. Also there is a financial problem. India is spending less amount of its resources on education. राइट, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 6% ऑफ इट्स जीडीपी वुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन. अभी इंडिया अपने जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज ही जो है एजुकेशन पर खर्च करता है. इसीलिए देयर इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन हायर एजुकेशन. आल्सो there is a failing in the standard of investments of higher education. हायर एजुकेशन का मतलब ही होता है क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड फेयरनेस. सो क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड फेयरनेस, इन तीनों की ही क्या है, स्थिति बहुत ही खराब है. सेवंथ इज हायर एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव. देयरफॉर जो मिडिल क्लास मिडिल इनकम क्लास जो फैमिली होती हैं वो हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं. सो हायर एजुकेशन इज expensive, not affordable in India. Also, according to Planning Commission, only 17.5% जो graduate youth है, they are employable, and this is the biggest drawback of our education system. सोचिए, if only 17.5% students are getting job,
और 17.5% students are capable or employable, then definitely more than 80% students are not able to get a job or not able to generate the job. Therefore जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको उतना ऑथेंटिक रिलायबल नहीं माना जाता, क्योंकि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री एंड मास्टर डिग्री, after that it is no guarantee you will get a job in private sector or in a government sector, right? Therefore the quality of education should be increased. Also the quality of research program is very low at a global place. तो इंटरनेशनल लेवल पर जो हायर एजुकेशन में जो रिसर्च की जाती है वो हमारे देश में बहुत ही कमी है। साथ ही साथ अमंग जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारे देश का जो स्थान है वो भी चिंताजनक है। क्लियर? आल्सो देयर इज़ अ नो यूनिवर्सल करिकुलम इन हायर एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो, राइट? तो इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड और भी जो हायर एजुकेशन की जो स्ट्रीम्स हैं उनके लिए यूनिवर्सल करिकुलम नहीं है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ अपने अकॉर्डिंग जो है इन एजुकेशन को प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ करिकुलम इनोवेशन हो जाएगा। वंस द करिकुलम हैज़ बीन डिसाइडेड इट हैज़ बीन फॉर नेक्स्ट 20 to 30 ईयर, उसमें कुछ इनोवेशन ही नहीं होता है, जबकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत ही फास्ट होता है। साथ ही साथ the student who are getting higher education, they are involved in student politics also, right? जो कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही होती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन पर फोकस ना करके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ हायर एजुकेशन इज लिमिटेड टू अर्बन एरिया, दिस इज द रियल सिनेरियो, राइट? जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश ही नहीं होती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आर लोकेटेड ओनली एंड ओनली इन अर्बन एरियाज, right? So these were the challenges or issues of higher education. Now we will study the initiatives, the schemes or policies of government to provide the higher education, right? So government schemes or institution for higher education, and the first is रूसा प्रोग्राम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राइट? हमारे देश में हायर एजुकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए रूसा प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राइट? सो रूसा प्रोग्राम हैज बीन इनेक्टेड इन अक्टूबर 2013 और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? सो इट हैज द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड finance to the colleges and universities, and if the finance would be provided to colleges and universities, then resources will increase, also the quality of higher education will also increase, and this program also emphasis on skill development, जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कूल्स को डेवलपमेंट करने पर फोकस किया जाएगा, right? And this program has the objective of increase the gross enrollment, right, to the 30% by 2020। तो रूसा अभियान के माध्यम से जो ग्रॉस एनरोलमेंट है उसको इंक्रीज किया जाएगा और 30% तक जो है ग्रॉस एनरोलमेंट को लिया जाएगा। आल्सो under this program the SC, ST and women students would be emphasized, so special emphasis on women, SC, ST, right? Also जो वीकर सेक्शन है उसके लिए भी एजुकेशन अवेलेबल हो सके, ये भी इसको किया गया है। Also capacity expansion and development on new infrastructure, so this was all about RUSA program, right, which has been enacted in October 2019. Next is
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सो जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो हमारे प्रदेश में और जिलों में हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको और अपग्रेड करेगा, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़, राइट, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट हो सके। साथ ही साथ देयर आर स्पेशल प्रोविजंस टू इंक्रीज द हायर एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट इज नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। और जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 है ये फोकस करती है एजुकेशन पर, स्किल डेवलपमेंट पर एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन पर। नेक्स्ट इज इंटर यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर पॉलिसी एंड क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। और इस स्कीम से जो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी एक सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकती हैं, क्लियर। साथ ही साथ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इज अ इनोवेटिव स्कीम। इस स्कीम में सभी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। सो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स वुड बी इनवाइटेड, राइट, फॉर ओपन डिबेट। और इससे क्या होगा, नॉलेज का क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग होगा। साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी से नॉलेज दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है इस तरीके से ट्रांसफ़र भी होगा। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IIMs एंड NITs। और गवर्नमेंट जब कभी भी बजट रिलीज़ करती है तो किसी न किसी स्टेट में IITs, IIMs जैसे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। सो एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, राइट, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन इन नेक्स्ट 5 ईयर। सो नेक्स्ट 5 ईयर 2019 से 24 में जो क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी है और जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के तहत ही जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको डबल किया जाएगा। साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन है उसको ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ असेसमेंट, राइट, एक्रीडेशन एंड जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। दिस इज नोन एज राइज स्कीम, राइट। सो रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। सो राइज प्रोग्राम्स के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सो हायर एजुकेशन के लिए लेबोरेटरीज अच्छी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, साथ ही साथ और भी रिसोर्सेज होनी चाहिए। सो राइज प्रोग्राम्स के माध्यम से जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वुड बी अपग्रेडेड, राइट, और उसको वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, राइट। तो जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैव लैक ऑफ फाइनेंसेस, राइट। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। और ये जो एजेंसीज है यह इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। एंड 11th इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। University Grant Commission plays an important role for providing higher education in India. University Grant Commission has been established by UGC Act 1976 और ये बॉडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज वर्किंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ हायर एजुकेशन, राइट, पब्लिकेशन एंड रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट, फाइनेंशियल असिस्टेंट फैसिलिटीज। तो ये हायर एजुकेशन के लिए पब्लिकेशन के लिए भी जिम्मेदार है, रेगुलेट करती है जो हायर एजुकेशन से संबंधित बॉडीज़ हैं, साथ ही साथ
हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है, राइट। एंड यूजीसी इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। So these were the government schemes or government institutions for higher education, right? Now we will study programs and schemes for higher education by मध्य प्रदेश, राइट। सो यहाँ से भी जो है 5 नंबर का या 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि which programs, right, which schemes or programs the Madhya Pradesh government has launched for providing higher education। सो आपको ये उत्तर लिखना है। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा जाए कि which schemes or institutions have been established by central government for providing higher education, then you can write these 11 points, right? Now we will study programs or schemes for higher education by Madhya Pradesh government. So Madhya Pradesh government has launched a building development plan। so जो higher institutions हैं, whether कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए नए भवन या नई बिल्डिंग का जो है डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ विक्रमादित्य स्कीम हो जाएगी, राइट। फिर थर्ड फॉरेन स्टडी क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा। सो फॉरेन स्टडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम। इस स्कीम के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फॉरेन में पढ़ने के लिए जो है सरकार स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एससी स्टूडेंट्स फॉर पीएचडी, ताकि जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी को कर पाए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग और इनेक्टिंग रूसा कैंपेन हो जाएगा। फिर विवेकानंद कैरियर गाइडेंस स्कीम हो जाएगा। अंडर दिस स्कीम जो है स्टूडेंट्स को अपने कैरियर के लिए क्या करना चाहिए, राइट, उसका गाइडेंस दिया जाता है। साथ ही साथ गांव की बेटी योजना हो जाएगी। एंड गांव की बेटी योजना या गांव की बेटी पॉलिसी इज अ स्कॉलरशिप पॉलिसी, राइट। इफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ विलेज हैज पास 12th क्लास तो उसको ग्रेजुएशन में और हायर एजुकेशन में जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। आल्सो लिविंग अलाउंसेस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस स्कीम्स, इसके माध्यम से कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को लिविंग अलाउंस जो है दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स किसी भी सिटी में आसानी से रह सकें और हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.